السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کہ آپ لوگ ویل اینڈ گڈ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ضدی عشق میرا ناول کی ایپیسوڈ نمبر 19 اور 20۔ تو دیکھتے ہیں آگے کشش کے ساتھ ہوتا ہے کیا، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ابھی سے میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بعد میں آپ لوگوں نے بھول جاننا ہوتا ہے کہ عرشی آپ لوگوں کو سے کچھ کہہ رہی ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ بڑوں کی بات مانتے ہیں اچھے بچے، تو کائنڈلی میری بات مان لیں اور ابھی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ پچھلی ویڈیو کے لیے تھوڑی معذرت خواہ ہوں کہ اس کی سکرین تھوڑی شو صحیح نہیں ہو رہی تھی، تو آج انشاءاللہ آپ لوگوں کو صحیح دکھائی دے گی۔ ضدی عشق میرا، کیا کیا امتحان باقی ہیں اس عشق میں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج کون سا امتحان پاس کرنا ہے ان لوگوں نے۔ آپ لوگوں کو بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی ناول پسند ہے، آپ لوگ ریڈ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ لازمی مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، میں اس کو ریڈ کروں گی اور اگر اچھا ہوا تو میں لازمی پڑھوں گی۔ صحیح ہو گیا؟ تھوڑی سی مجھے آپ لوگ ذیل دیں، تھوڑی سی انرجی دیں، میں اتنے شوق سے ریڈ کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کی طرف سے کوئی انرجی نہیں مل رہی۔ گاڑی بہت تیزی رفتاری سے آگے بڑھ ہوئی تو وہ دونوں رک گئی۔ گاڑی انہیں کڈنیپرز کی تھی۔ وہ قہر کی نظر ان پہ ڈالتے باہر نکلے گئی کام سے۔ آگے کڈنیپرز، پیچھے ویٹرز، دونوں طرف سے وہ گھر گئی تھیں۔ بہت بھاگ لیا، اب بھاگ کے دکھاؤ، کڈنیپر جلیل نے غصے سے کہا۔ چیلنج۔ کشش زیر لب بڑبڑائی۔ انائشہ نے اس سے دہل کے دیکھا۔ کشش ٹانگوں میں جان نہیں، کیسے بھاگیں گے؟ انائشہ منمنائی۔ کشش نے اسے گھور کے دیکھا اور پیچھے مڑتے دوڑ لگا دی۔ انائشہ نے کڈنیپرز کو ایک نظر دیکھ کشش کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ کڈنیپرز منہ دیکھتے رہ گئے۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھو اور ان کا پیچھا کرو، جلیل نے بولا۔ تو اسد اور فوراً واپس گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی ان کے پیچھے لگا دی۔ دونوں سڑک پہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ سامنے ایک ویٹر جو ان کا پیچھا کر رہا تھا، ان کو اپنی طرف بھاگتے دیکھا، وہیں تھما۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ اس کی طرف کیوں بھاگی آ رہی ہیں۔ سڑک سنسان اور رات کا وقت، وہ گھبرا گیا۔ بھوت بھوت بچاؤ، کشش نے چلانا شروع کر دیا۔ انائشہ نے بھاگتے ہوئے اس افلاطون کو دیکھا۔ ویٹر کے سننے کی دیر تھی، اس نے بھی الٹی دوڑ لگا دی۔ وہ بیچارہ ڈرپوک سا پیسوں کے لیے جان کو خطرے میں ڈالنا اسے صحیح نہ لگا۔ کہاں ہے بھوت؟ وہ بھاگتا ہوا بولا۔ وہ گاڑی میں 3 بھوت ہیں، انسان کے روپ میں، انسان کو کھاتے ہیں، بھاگ لو اگر جان پیاری ہے۔ کشش نے بھاگتے ہوئے اسے مزید ڈرایا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو واقعی گاڑی ان کے پیچھے تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں بھاگتی اس سے آگے نکل گئی تھی۔ اس نے بھی سپیڈ پکڑی اور ان کو بھی کراس کر گیا اور وہ دونوں دیکھتی رہ گئی۔ گاڑی ان کے قریب پہنچنے والی تھی اور اب ان کی ٹانگوں میں جان بھی باقی نہیں بچی تھی۔ وہ کڈنیپرز بھی ان کو جان بوجھ کے بھگا رہے تھے تاکہ تھک کے خود ہی ہار مان جائیں۔ وہ ان کی حالت کو انجوائے کر رہے تھے۔ انائشہ نے مڑ کے ان کو مسکراتے دیکھا، وہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا یہ؟ انائشہ نے دانت پیستے کہا۔ کیا خیال ہے، مزہ چکھائیں پھر ان کو؟ کشش نے آنکھ ونک کرتے کہا، جبکہ بھاگنا نہیں روکا۔ ڈن پارٹنر۔ انائشہ بھی کشش کے رنگ میں رنگ گئی۔ پورا پارک چھان مارا لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ وہ دونوں بہت پریشان تھے۔ کہاں چلی گئی؟ یامین نے ماتھا مسلا۔ حاذق نے گہرا سانس خارج کیا۔ پارک تقریباً خالی ہو چکا تھا اور ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ دادا جی کی کال آ رہی ہیں، بار بار کیا کروں، کیا جواب دوں گا انہیں؟ یامین نے موبائل حاذق کے سامنے کرتے کہا جس پہ کال آ رہی تھی۔ اتنے میں ایک شخص بھاگتا ہوا ان کے پاس سے گزرا۔ بھوت بھوت بچاؤ، ان دونوں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ ایک ریسٹورانٹ میں گھس گیا۔ کیا بول رہا ہے؟ کون سا بھوت؟ مینیجر نے اس شخص سے پوچھا۔ وہ 3 بھوت وہاں، وہ ہکلاتے بولا۔ تمہیں بھیجا کہ ان لڑکیوں سے بل لو اور تم واپس آ کے اب یہ ڈرامہ کر رہے ہو تاکہ میں بل معاف کر دوں، لیکن یاد رکھنا بل تمہاری تنخواہ سے کٹے گا۔ مینیجر نے اسے اچھا خاصا لتاڑ کے رکھ دیا، لیکن وہ ڈر کے مارے چپ ہی رہا۔ مینیجر اندر کی جانب بڑھ گیا۔
हाजिक और यामीन इस वेटर की तरफ बढ़े। 1 मिनट, क्या वो ये लड़की थी? यामीन ने कशिश की तस्वीर मोबाइल पे इसे दिखाई। इसने आंखें फाड़े पहले तस्वीर को देखा, फिर यामीन को। जी जी जी, यही थी। खाना खा के बिल दिए बिना भाग गई ये, और इसके साथ एक और भी थी। वेटर फौरन बोला, कहाँ 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 गई वो? हाजिक ने बिना देर किए से पूछा। वो इसी तरफ, वहाँ भूत है। वो फिर घबरा के बोला, थैंक यू। दोनों इस तरफ निकले, लेकिन यामीन वापस मुड़ा। ये आपका बिल। 5-5 हज़ार के ढेर सारे नोट अपने वॉलेट से निकाले, इस वेटर के हाथ पे रख दिए। वो हैरान रह गया। सर बहुत ज्यादा है, वो मिनमिनाया। अब्बा की टिप रख लो, हाजिक ने जाते हुए मुड़ के कहा, और दोनों गाड़ी की जाने बढ़े और गाड़ी इसके बताए हुए रास्ते पर डाल दी। कशिश, यू आर इम्पॉसिबल। यामीन दिल ही दिल में इसे मुखातिब हुआ। इसके चेहरे पे धीमी सी मुस्कान की आंच थी। यार क्या चीज है ये कशिश। अच्छा, इंसान जब नावल रीड कर रहा होता है ना, तो खुद भी ऐसे लगता है कि रियल में ये, यानी ऐसे माहौल को क्रिएट करता है ना मेंटली। तो जी, देखते हैं जैसे सुलगती ज़मीन पर बारिश की छोटी बूंद बरसती हो। वो अपने अंदर के छुपे इस एहसास को बाहर आने से मज़ीद नहीं रोक पा रहा था। दिल इसके लिए एक अलग ही तरंग पे धड़क रहा था। हाज़िक भी इसके चेहरे की एक अलग ही सी मुस्कुराहट को देख इसके लिए दिल से खुश हुआ और दुआ की थी कि वो दोनों ठीक हों। ऐसी भी क्या बीमारी कि अभी तक हॉस्पिटल में है और घर ही नहीं आई? सवेरा बेगम वॉल क्लॉक पे टाइम देखते बोली। दादाजी को भी बेइंतहा गुस्सा था, जिसकी वजह यामीन था। इनका फ़ोन नहीं उठा रहा था। हयात साहब ने भी काफ़ी दफ़ा कॉल की, लेकिन इसने नहीं उठाई। अब तो सारे घर वाले वाकई परेशान हो गए थे। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। क्या हुआ? आप किसे इस वक्त बार बार फ़ोन कर रही हैं? शहरयार ने घड़ी साइड दराज पे रखते सरसरी सा पूछा। अनायशा को इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं, कॉल करते वो परेशानी से बोली। शहरयार साहब के कान भी खड़े हुए। कहाँ गई थी वो? इन्होंने मुड़ के बीवी से पूछा। जॉब करती हैं वो, लहजे में शिकवा था। शहरयार साहब ने लब भींचे। ऐसी कौन सी जॉब है कि रात के 10 बज गए और घर नहीं आई? आप जरा बरहमी से पूछा गया। मालूम नहीं, ना इन्होंने बताया ना मैंने पूछा। साफ अल्फाज में कहती वो अपनी मेडिसिन लेने लगी। अपनी परेशानी इन्होंने बहुत आराम से शहरयार के कंधे पर डाल दी थी। वो जानती थी भले वो इससे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन एक बाप की तड़प इनके अंदर भी है। अपनी मेडिसिन लेके वो आंखें मूंद के बेड के साथ टेक लगा गई, जबकि शहरयार साहब उठे, मोबाइल उठाया और बाहर निकली। वो जानती थी अब वो अनायशा को पा लेंगे। एक प्यारी सी मुस्कुराहट ने इनकी लबों को छुआ। कशिश ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई तो इसे एक साइड पे काफी ज्यादा पत्थर नजर आए, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े थे। कशिश ने अनायशा को इशारा किया और दोनों इस तरफ भागते पहुंची। ज्यादा सारे पत्थर हाथ में उठाए और अनायशा को देखा। फायर! कशिश जोर से चिल्लाई और दोनों अंधाधुंध गाड़ी में पत्थर मारने लगी। वो जो इनकी बेबसी को एंजॉय कर रही थी, अचानक पत्थरों की बारिश से वो घबरा गए। गाड़ी रोको, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। असद गुस्से से हसन से बोला। कशिश ने एक बड़े पत्थर का निशाना ताक के टायर पे मारा, जिससे गाड़ी अनबैलेंस हुई। हसन नया नया था इस काम में, इसलिए वो संभाल ना सका। क्या कर रहा है पागल, गाड़ी संभाल! जलील बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाया। गाड़ी इनके पास पहुंची तो वो दोनों फिर भागने की तैयारी बांधते निकलते निकलते जलील के सर पे जोर से पत्थर मार चुकी थी, क्योंकि वो गाड़ी आहिस्ता होने पे बाहर निकला था और यही वो गलती कर गया था। ओह मेरा सर! इसका हाथ सर पे गया जहां से खून निकला। कशिश की निशानाबाजी की प्रैक्टिस आज खूब काम आई। रन! कशिश ने अनायशा को कहा और दौड़ लगा दी। अनायशा सारे पत्थर हाथ से नीचे गिराए और कशिश के पीछे भागी। दोनों ने अपनी स्पीड बढ़ाई, लेकिन वो अब ज्यादा तेज नहीं भाग सकती थी। बहुत देर से भाग भाग के अब इनकी टांगे जवाब दे गई थी। सांस फूल चुका था। एक जगह रोक सांस बहाल किया। मुझे ना ये बद्दुआ लगी है कि बस सारी जिंदगी भागती रहो, कशिश ने फूले सांस से कहा। मेरी भी अब बस हो गई है। वो आ रहे हैं पीछे, अनायशा ने कहते मुड़ के देखा और कशिश से कहा। बहुत ही कोई ढीठ किडनैपर्स है, कशिश ने दांत पीसते कहा। और एक वो लैंडलॉर्ड हैं, इनका पता ही नहीं वो कहाँ है, कशिश बुरा समूह बनाते बोली। और दोनों ही दुखती टांगों से एक बार वो भागने लगी। वेट वेट, हाजिक गाड़ी रोको! यामीन की नजर सामने भागती हुई अपनी तरफ बढ़ती कशिश पे जा ठहरी। हाजिक ने गाड़ी को फौरन ब्रेक्स लगाए। दोनों पलक झपकते बाहर निकले। कशिश के पीछे ही अनायशा पे भी नजर हाजिक की नजर पड़ी तो इसके दिल ने शुक्र का कलमा अदा किया।
कशिश भागती हुई यामीन के करीब पहुंची। यामीन ने इसे अपनी पनाहों में लिया और कशिश को ऐसा लगा जैसे वो किसी के मजबूत हसार में आ गई हो। लंबे और गहरा सांस लेती वो यामीन के सीने से लगी। आंखें मूंदे इसकी मखसूस परफ्यूम की खुशबू से इसे महसूस करते खुद को परसुकून कर रही थी। यामीन ने इसे किसी बच्चे की तरह अपनी आगोश में लिया हुआ था और आंखें मूंदे वो भी दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। अनायशा हाजिक को देख वहीं इसके कदम थमे। दूसरी तरफ हाजिक भी जो भागा आ रहा था इसकी तरफ वो भी रुका। दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए दोनों ने ही एक दूसरे को देख अल्लाह का शुक्र अदा किया। अनायशा की पलकें भीगने लगी, नजरें फेर ली, रुख बदला, आंसू पूंछे, आंखें बंद करके गहरा सांस खारिज किया जैसे बहुत थक गई हो। हाजिक भी धीरे धीरे चलता इसके करीब आया। ओह यार क्या सीन है। देखे ना, एक उसके अपने हस्बैंड के सीने के साथ लगी खड़ी है और इसके दिल में उस वक्त क्या जा रही होगी। इतनी सच्ची मोहब्बत होने के बावजूद इतनी दूरी, कुछ कह ही नहीं पा रही, ना कोई अपना नजर आ रहा है बेचारी को। तो बहुत ये नहीं अजीब सा फील हो रहा है। तुम ठीक हो ना? हाजिक ने बिना कुछ सोचे समझे दिल की बात मानते इसे बहुत नरमी से पूछा। अनायशा ने नाक पूछा और हाथों के पूछ से आंसू साफ करते इस बात में सर हिलाया। जब इसके माथे पे खून के जमे कतरों को वो बहुत आसानी से देख गया। इसे चोट लगी थी। हाजिक का दिल बेचैन हुआ। गाड़ी वापस मोड़ वो दूर से ही जलील यामीन को पहचान गया था। हसन से कहते वो गाड़ी वापस मोड़ गए, लेकिन सर वो लड़कियां सामने ही हैं। हसन आया शिकार छोड़ने पे तैयार ना था। तुझे जो कहा वो कर, अगर जान प्यारी है तो निकलो फौरन। इस बंदे के हाथ लगे ना तो सीधा ऊपर पहुंचेंगे। निकलो अब। जलील ने अफरा तफरी में यामीन की तरफ इशारा करते कहा और गाड़ी को वापस मोड़ लिया। इतनी देर कर दी आने में। सर उठा के वो यामीन से शिकवा करती यामीन के दिल की दुनिया को हिला गई। दुल्हन का बिखरा बिखरा रूप और खुमार आलूद आंखें और शरबती लब और एक इस्तेहकाक। यामीन का दिल तो अपने इख्तियार में रहा ही नहीं, बेइख्तियार ही देखते लबों को इसके माथे पर रखा। दोनों ही आंखें बंद किए इसलिए एक दूसरे का होना महसूस कर रहे थे। वो यामीन के सहारे ही खड़ी थी। इसके अंदर जैसे जान खत्म हो गई थी। कशिश ठीक हो? यमीन को इसका वजूद बेजान सा महसूस हुआ। नींव व आंखें की और चेहरे पे एक दिलफरेब मुस्कान आ गई। यामीन इसकी हालत के पेश नजर मजीद कुछ ना बोला और इसे अपनी बाहों में उठाए गाड़ी की जानिब बढ़ा। आज एक अलग ही एहसास ने घेरा था इसे। वो पल जो वो दूर थी और वो पल जब वो इसे वापस मिली, इस आगाही के थे जो मोहब्बतों का वजूद दिलों में डाल देती हैं। वो इसे अच्छी लगती थी निकाह से पहले या निकाह के बाद, वो तयन ना कर सका, लेकिन इसका होना यामीन की सांसों के होने के लिए ज़रूरी था। इस बात का इल्म इसे हो गया था। हाजिक यामीन और कशिश को मीर वाला विला ड्रॉप करता अनायशा को लिए हॉस्पिटल आ गया। इसकी चोट इसे बेचैन कर रही थी। अनायशा ने खामोशी से अपना चेकअप करवाया। डोंट वरी, ज़्यादा गहरा जख्म नहीं, बैंडेज कर दी और ये मेडिसिन ले लें, डॉक्टर ने पेशेवराना अंदाज में कहा। आज शुक्रिया अदा करता अनायशा को लिए गाड़ी की जानिब बढ़ा। सारे रास्ते खामोशी छाई रही। हाजिक ने एक दो बार इसे देखा लेकिन वो बाहर ही देखती रही। यही बात इसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी। अनायशा तुम ठीक हो ना? हाजिक को समझ न आया कि क्या बात करे, फिर भी बात शुरू कर दी लेकिन अनायशा ने इग्नोर कर दिया। हाजिक ने लब खींची और गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। अनायशा को इसके गुस्से का अंदाजा हुआ जब गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ी। हाजिक स्पीड आहिस्ता करे, वो घबरा के बोली। अब की बार हाजिक ने इग्नोर किया और मजीद स्पीड बढ़ाई। अनायशा इतनी तेज स्पीड पे बहुत सख्त घबरा गई। पहले से ही इसको अपनी तबीयत सही नहीं महसूस हो रही थी। आंखें बंद की वो सर नीचे कर गई। हाजिक प्लीज गाड़ी स्लो। मजीद वो ना बोल पाई, इसकी आंखों से एक आंसू गिरा। हाजिक ने एक नजर इसे देखा और झटके से ब्रेक लगाई कि इसका सर डैशबोर्ड से जा टकराया और इसे लगा पूरी दुनिया ही घूम गई है। एक पल में इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सर पे हाथ रखे वो तड़प गई। उतरो गाड़ी से। हाजिक ने बिना इसकी हालत की परवाह किए इसे हुक्मनामा जारी किया। अनायशा ने दुखी नजरों से इसे देखा और खामोशी से चादर अपने इर्द गिर्द लपेटती दरवाजा खोल नीचे उतरी। घर आ चुका था इसे अंदाजा ना था। पलट के देखा, वो जख्मी नजरों से इसे ही देख रहा था। अनायशा खामोशी से अंदर की जानिब बढ़ गई जबकि हाजिक ने जोर से स्टीयरिंग पे मुक्का मारा। वो अनायशा को तकलीफ नहीं देना चाहता था लेकिन फिर भी दे गया। गाड़ी पार्क करता वो भी अंदर की जानिब बढ़ा जहां अनायशा की पेशी शहरयार की अदालत में थी।
शहरयार गुस्से से भरे खड़े थे जबकि अनायशा सर झुकाए खड़ी थी। ये वक्त है घर आने का। शहरयार शरीफ घरों की बच्चियां इतनी रात गए घर से बाहर रहती हैं क्या? इसके सर की चोट को भी नजरअंदाज करते शहरयार सबका अंदाज बहुत रूखा था। अनायशा का सर ना उठा, वो खामोश ही रही। जमीला बेगम भी सीढ़ियों से खड़ी देख रही थी। इनका बस नहीं चल रहा था कि अनायशा को अपने आंचल में छुपा ले। बाबा हाजिक आगे बढ़े। हाजिक, आप बीच में नहीं बोलेंगे, इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं। शहरयार साहब धीमे लेकिन सख्त लहजे में बोले, और आप ऐसी कौन सी जॉब है जहां आपको रात भर रहना पड़े? सीने पे हाथ बांधे वो आज अनायशा को बख्शने के मूड में ना थे। अनायशा आंखें बंद किए इनकी बात पर सुन रही थी। कितना इसका दिल था कि ये बंदा इसे मुखातिब करे, इस पे बाब होने का हक जिताए। अनायशा का अनजाने में ही आज दिल का अरमान पूरा हो गया। वो बहुत मुतमईन खड़ी थी। इनकी डांट इसे फूलों की तरह महसूस हो रही थी। सर तो झुका था लेकिन दिल में फख्र था कि ये शख्स इसका बाप है, इसका साहिबान। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। शहरयार को इसकी खामोशी बुरी लगी। बाबा, हादसा हो गया तो छोटा सा, इसलिए देर हो गई। हाजिक से रहा ना गया इसलिए बोल पड़ा। शहरयार ने गहरा सांस खारिज किया। आइंदा ऐसा ना हो। जो भी है, कोई भी मसला है घर में इन्फॉर्म करें। जाएं अपने रूम में। लहजा धीमा हुआ लेकिन अल्फाज में नरमी ना थी। अनायशा बिना देखे इस बात में सारी हिलाती अंदर की जानिब बढ़ गई। हाजिक भी खामोशी से अपने रूम की जानिब बढ़ा। शहरयार इन दोनों को एक साथ देख कुछ और ही सोचने लगे थे जबकि जमीला बेगम अनायशा के रूम की जानिब इसके पीछे बढ़ी। मीर विला के गेट के अंदर यामीन ने कदम रखा। कशिश अभी भी इसकी बाहों में थी। अब देखते हैं आगे कौन सा धमाका होता है। जब अंदर जाएंगे तो क्या होगा, सोचने वाला पॉइंट है ना। एक फूल जितना भी यामीन को इसका वेट ना लगा जबकि खाना बेहिसाब। इसके चेहरे पे थकन के आसार देखता वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और वो आंखें मूंदे यामीन के सीने पे सर रखे आंखें बंद किए सुकून महसूस कर रही थी। ये जाने बिना के अंदर दोनों के लिए एक तूफान खड़ा हो चुका है जिसके इन दोनों ने मिल के सामना करना था। यामीन जैसे ही मीर विला में दाखिल हुआ सबको सामने बरजमान देख हैरान हुआ। वो सब अभी तक जाग रहे थे। इसे लगा था कि वो सो गए होंगे लेकिन यामीन ने कशिश को नीचे उतारा। वो भी सबको सामने देख थोड़ी कंफ्यूज हुई थी। लड़खड़ा के गिरने वाली थी कि यामीन ने एक हाथ कमर के गिर्द बांध के इसे अपने हिसारों में लिया। इसकी टांगों में जान कहाँ थी कि अपने पैरों पे खड़ी हो सकती। कशिश ने सामने देखा जहाँ सबकी नज़रों में सवाल थे अनगिनत और कुछ की नज़रें और चेहरे पे गुस्सा था। कशिश की नज़रों ने अपने दादाजी का तवाफ किया। इनके चेहरे से भी संजीदगी थी और वो भी कुछ नाराज से लगे। कशिश ने गर्दन मोड़ के यामीन को देखा जो बहुत मुतमईन खड़ा था। इससे पहले कि कोई कुछ कहता दादाजी की आवाज़ ने सबको खामोश करवा दिया। यामीन, ये सब क्या है? दादाजी ने करख्त लहजे में दरियाफ्त किया। इन्हें कशिश की हालत देख के बहुत अजीब सा लगा था। देखो तो कैसे चिपक के खड़ी हैं। अमारा बेगम को भी कशिश के यामीन के सीने से लग के खड़े होने पे गुस्सा सा आ गया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। सवेरा बेगम की जबान भी चली। दादाजी ने इन दोनों पे एक कहर की नज़र डाली। हक है इसका। यामीन के मजबूत लहजे ने सबको चौंका दिया और अपना हसार मजीद कशिश के गिर्द मजबूत किया कि वो तो यामीन को देखे गई। क्या मतलब, कैसा हक? सवेरा बेगम को कुछ गड़बड़ लगी। निकाह में है मेरे मजबूत लहजा और सर्द आवाज सब कुछ सख्त तार कर गए। एक पल को तो सबकी जबान तालू से जा चिपकी। क्या कह रहे हो तुम? कशिश से निकाह कराए हो? हया साहब को भी अब होश आ ही गया। देखे छुप के निकाह कराई। सवेरा बेगम ने दांत पीसते कहा। छुप के नहीं किया, मैंने खुद करवाया है। दादाजी ने इन सब की बोलती बंद करवा दी। अब तो जैसे सबको सांप सूंघ गया। आपने मेरे बेटे का निकाह मेरे बगैर ही? हया साहब दुख से बोले। निकाह के लिए लड़का लड़की काजी और लड़की के वकील की जरूरत होती है और निकाह हो जाता है। कशिश का सरपराज तो और इसके निकाह का वकील मैं हूँ, तो इस निकाह को कौन रोक सकता था? दादाजी ने सख्त लहजे में कहा। सभी एक दूसरे को तकते रह गए। आपने तो सब पे एटम बम ही गिरा दिया है, धीरे से यामीन को कहती। वो सामने सबके चेहरों को देखती यामीन को बहुत प्यारी लगी थी। तुम भी तो हर वक्त पटाखे फोड़ती रहती हो। यामीन ने ज़ेरे लब सरगोशी की कि बस वही सुन सकी। गर्दन मोड़ के इसने अपने मजाजी खुदा को देखा जो सबसे अलग और सबसे जुदा था। लेकिन इसका था, इसी का था वो इश्क। इसी का था वो इश्क जो बन रहा था अब जिद्दी इश्क। कशिश की आंखों की चमक यामीन की नजरों से छुपी ना रह सकी।
یہ سب کب ہوا؟ سویرا بیگم کو اپنی آواز پتال میں سے آتی محسوس ہوئی۔ کشش کو بہو کے روم میں وہ کیسے ایکسپٹ کرتی؟ یامین اتنی دیر کیوں کی آنے میں؟ جانتے ہیں وہ سب کتنے پریشان تھے؟ اور کشش کی حالت کیا ہوا تھا؟ دادا جی نے سویرا بیگم کی بات کو نظر انداز کرتے یامین سے سنجیدگی سے پوچھا۔ دادا جی کیا ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ یامین کو کشش کی حالت ٹھیک نہ لگی۔ وہ یامین کے سہارے ہی کھڑی تھی۔ کشش ڈاکٹر پہ چلے؟ یامین سب باتوں کو نظر انداز کرتے کشش سے فکر مندی سے پوچھا تو اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیا مطلب؟ ابھی تو ڈاکٹر کی طرف سے آ رہے ہو، پھر سے ڈاکٹر؟ دادا جی کو کچھ صحیح نہ لگا۔ یامین نے قریب صوفے پہ کشش کو بٹھایا اور سب کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوا۔ وہ شاید کبھی بھی صفائی نہ دیتا اگر سامنے دادا جی نہ ہوتے۔ دادا جی تحمل سے سنیے گا، کشش کڈنیپ ہو گئی تھی۔ یامین کی بات پہ سبھی نے دہل کے کشش کو دیکھا جو اب اپنی ٹانگیں سیدھی کرتی آرام سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں موند گئی تھی، جیسے اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ یامین نے سب کو مختصراً ساری بات بتا دی۔ کشش میرا بچہ، کڈنیپرز نے کچھ کہا تو نہیں؟ دادا جی تڑپ کے کشش کے پاس بیٹھے۔ کشش نے شکوہ کنار نظروں سے اپنے دادا جی کو دیکھا۔ کتنا مان تھا اسے اپنے دادا جی پہ کہ کوئی اور سمجھے نہ سمجھے لیکن اس کے دادا جی سے ضرور سمجھیں گے۔ میں ٹھیک ہوں دادا جی، آواز میں نے چاہتے ہوئے بھی نمی گھل گئی۔ میرا بچہ، دادا جی نے اسے سینے سے لگایا۔ اس کی آواز پہ ہی وہ تڑپ کے رہ گئی۔ ان کے سینے سے لگتے وہ بھی رو دی۔ اپنے دادا جی کی آغوش میں ہی تو اسے سکون ملتا تھا۔ اپنے پیروں اور ٹانگوں پہ کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا تو کشش نے نظریں پھیر کے دیکھا۔ کرن اس کے پیروں اور ٹانگوں کو دبا رہی تھی اور آنسو اس کی آنکھوں میں بھی تھے۔ کیا کر رہی ہو؟ ہاتھ ہٹاؤ۔ کشش کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ چپ رہو، دیکھو تو کیا حالت بنا لی ہے۔ ایسی تو نہ تھی ہماری کشش، کرن نے بہت محبت سے کہا۔ بیٹا کشش کو روم میں لے جاؤ، عالیہ بیگم نے کہا تو وہ کرن کے سہارے اٹھی کہ پھر سے لڑکھڑا گئی۔ پاس کھڑے یامین نے ہاتھ پڑاخے سے گرنے سے پہلے ہی تھام لیا۔ واہ یار، حقیقی لائف میں ایسے پارٹنر ہو تو مزہ نہ آ جائے۔ اللہ پاک سب کو ایسا پیار کرنے والا پارٹنر نصیب فرمائے، آمین۔ ایسا ہیرو تو کسی کسی کو ہی ملتا ہے۔ کچھ زیادہ ہی محبتیں جاگ رہی ہیں، سمیر نے کھسیانہ ہو کے داور کے کان میں کہا تو اس نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ دادا جی میں لے جاتا ہوں، ویسے بھی آج رخصتی تھی۔ یامین کی بات پہ جہاں سب چونکے وہی دادا جی نے ایک گھوری سے یامین کو نوازا۔ رخصتی تھی لیکن کینسل ہو گئی، لہٰذا آپ اپنے روم میں جائیں اور کشش اپنے۔ دادا جی بہت پیار بھرا طنز کیا تو جہاں یامین کا منہ اترا وہیں کشش کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ جی ہو دادا جی، وہ دل ہی دل میں دادا جی سے مخاطب ہوتی کرن کے ساتھ روم کی جانب بڑھی لیکن یامین کو منہ چڑھانا نہ بھولی۔ یامین اس کی اس حرکت پہ زیر لب مسکراتا رخ پھیر گیا۔ میرا خیال ہے اب تماشا ختم ہو گیا تو جا سکتے ہیں۔ ایک سخت نظر سویرا اور ان کی بہن پہ ڈالتے وہ مخاطب ہوئے۔ رات کافی ہو گئی، ہمیں چلنا چاہیے۔ مارا گڑبڑا گئی اور اپنے شوہر کے ہمراہ وہاں سے نکلی جبکہ ان کی اولاد فنکشن کے ختم ہونے پہ ہی گھر جا چکی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی بس سن گن لینے یہاں پہنچے تھے۔ حال خالی ہو گیا تھا، سبھی ایک ایک کر کے جا چکے تھے سوائے حیات صاحب، دادا جی اور یامین کی۔ حیات صاحب ابھی بھی اپنے باپ اور بیٹے کو بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ روم میں آتے ہی عنائشہ نے جوتے اتارے اور بستر پہ ایک چت سیدھی ہو کے لیٹ گئی۔ ٹانگیں اس کی شل ہو گئی تھی۔ شہریار صاحب کے رویے کو سوچتی دماغ آج کے واقعہ کی جانب چلا گیا۔ آج کا دن وہ کبھی نہیں بھولنے والی تھی اور کشش کو تو وہ کبھی بھول سکتی بھی نہیں تھی۔ کشش کا سوچتی اس کے لبوں سے مسکراہٹ کو چھوا۔ وہ واقعہ بہت بہتر ہے، اس کا سٹیمنا بھی کمال کا ہے۔ آج اگر وہ واپس آ سکے تو صرف اسی کی وجہ سے۔ عنائشہ میری بیٹی، جمیلہ بیگم نے اندر آتے ہی سے پکارا، آواز میں فکر نمایاں تھی۔ عنائشہ سیدھی ہو بیٹھی۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ اور یہ چوٹ کیسے لگی؟ انہوں نے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے پیار سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ عنائشہ نے ان کی تسلی کرانی چاہی، لیکن بیٹا یہ چوٹ کیسے آئی؟ جمیلہ بیگم کی پریشانی ابھی بھی کم نہ ہو رہی تھی۔ عنائشہ کا دل کیا سب کچھ بتا دے ان کو، لیکن پھر خاموش رہی اور کچھ لمحے توقف کے بعد جمیلہ بیگم کو دیکھتے بولی، ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور گاڑی
बेख्तियार मुंह की तरफ हाथ गया और हाजिक वो कहाँ आपको मिले, अगला सवाल किया तो हाजिक के नाम पे अनायशा की धड़कन बेतरतीब हुई। जी वो वही, इन्होंने ही हेल्प की। अनायशा ने सर झुकाते कहा, अनायशा आप जॉब कहाँ करती हैं? जमीला बेगम के अचानक पूछने पे वो इन्हें देखती रह गई। एक एक रेस्टोरेंट में। अपनी आवाज़ का धीमापन वो खुद भी महसूस कर सकती थी। हाजिक के रेस्टोरेंट में? इन्होंने कड़ी से कड़ी मिलाई। जी। अनायशा ने हाँ कहने में ही आफिया समझी। ठीक है, आप आराम करें, सुबह बात होगी। वो थोड़ा संजीदगी से कहती उठ गई। खाना खाया था? उठते हुए माँ की ममता से मजबूर होकर पूछ लिया। बेख्तियार ही नजरों में कशिश के साथ बिताए गए लम्हे घूम गए। जी खा लिया था। वो इसका बिस्तर सेट करती गुड नाइट कहती चली गई। ओह कशिश, यू आर सो स्पेशल। ख्यालों में ही वो इससे मुखातिब हुई कि दरवाजे पे नाक करता हाजिक अंदर आया। अनायशा फौरन से उठ बैठी, वो आड़ी तिरछी लेटी थी। यूं हाजिक के अंदर आने पे इसे तब तो बहुत चढ़ी, लेकिन फिर भी खामोशी से सवालिया नजरों से देखा। ये तुम्हारी मेडिसिन? बिना इसकी तरफ देखे मेडिसिन दराज के ऊपर रखी और जाने के लिए पलटा के अनायशा की तंज भरी आवाज से माँ से टकराई। थैंक्स। आप किसी मुलाजिम के हाथ भी भेज सकते थे। पलट के एक सख्त नजर इसे देखा, जो बिना पलक झपके इसे ही देख रही थी। कल से रेस्टोरेंट आने की जरूरत नहीं, कह के वो जाने लगा। क्यों? तड़क के पूछती वो मुश्किल खड़ी होती इसके पास आई। क्योंकि मैं कह रहा हूँ। मैं फिर जोर दिया। आपको कहने से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, शायद आप भूल रहे हैं। अनायशा ने गुस्से से इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया, मैं ही खत्म कर रहा हूँ। हासिक भी सर्द आवाज में बोला। आप ऐसा नहीं कर सकते। बिना किसी वजह के आप मुझे जॉब से नहीं निकाल सकते। अनायशा ने दांत पीसते इसकी मद्दे मुकाबिल आते कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। समझी तुम? हासिक ने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया। कुछ पल खामोशी छा गई। दोनों ही एक दूसरे को सख्त नजरों से घूर रहे थे। बस यही तो करना आता है आपको, फैसले सुनाना। अगले बंदे की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं ना? कहते हुए वो मुंह फेरती पीछे हटी। लेकिन मैं भी आपको बता दूं, मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी। सारी गलती इस मदीहा की थी, इस पे आपको बहुत भरोसा था। इसे बोलता अंदाजा ना हुआ कि वो क्या बोले जा रही हैं। भरोसा तो कभी तुम पे भी किया था, तुमने भी तो तोड़े, एक पल नहीं लगाया। लहजा जख्मी था। अनायशा ने नजरें फेरी। इन्हें थोड़ा इन्हें नहीं तोड़ा मैंने आपका भरोसा, कहते वो आंसू रोक के बोली और पलट के इसे देखा, जिसकी नजरों में सिर्फ बेयकीनी थी। अनायशा ने नफी में सर हिलाया। यू नो, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कह लूँ, आपने मेरे यकीन करना ही नहीं। और जहाँ आप पे यकीन ना किया जाए, वहाँ कुछ भी कहना बेकार है। इसके पास आती वो धीमे लहजे में बोली, जबकि आंसू अब अपनी जगह बना चुके थे और बह के गालों के रास्ते गर्दन का सफर कर रहे थे। हमारे बीच अब ऐसा कुछ नहीं कि मैं तुमसे कुछ कहूँ या सुनूं। बेहतर होगा अपनी हद में रहो। और इस घर में भी तुम्हें मैं सिर्फ मामा की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो वहाँ बहुत सख्त बंदा है यार, नफरत इतनी शदीद, वरना एक सेकंड में तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूं। चुटकी बजाता वो अनायशा को मजीद सुलगा गया। अच्छा हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ, देखती हूँ कैसे निकालती हो। अनायशा जरहाना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ी। हाजिर इसके तेवर देखता रह गया। बहुत गरूर है ना अपनी अमीरी पे, तो अपनी अमीरी अपने पास रखो। हाजिर शमरेज, किसी और पे अपनी अमीरी का धौंस जमाना, मुझ पे नहीं। और ये घर जितना तुम्हारा है ना, इतना ही मेरा भी हक है इस घर पे। उसे में इसका बीपी शूट कर गया। आंखें इसकी सुर्ख हो गई, गाल लाल अंगारा सी हो गई, इसका सांस फूलने लगा था। हाजिर को याद था एक बार पहले भी इसकी साथ ऐसी कोई सिचुएशन हुई थी, तो वो आपस से बाहर हो गई थी। कॉलेज में किसी से इसकी बहस हो गई थी। इस वक्त भी बहुत मुश्किल से हाजिर ने इसे काम डाउन किया था। अनायशा, हाजिर ने इसे बाजू से थामना चाहा। हाथ मत लगाना, उंगली उठा के वार्न किया। आंखें गुस्से की वजह से पूरी फैली हुई थी और काजल फैल के इसकी आंखों को मजीद बड़ा बना गया था। हाजिर ने इसे पकड़ के अपने गले से लगाया। वो गुस्से से मजीद भभर गई। पूरा जोर लगा के इसने खुद को हाजिर से अलग करना चाहा, लेकिन हाजिर की गिरफ्त तो बहुत मजबूत थी। वो इसका हसार ना तोड़ सकी, तो अपने नाखन इसकी कमर पे चबो डाले। हाजिर वो भी बर्दाश्त कर गया, लेकिन वो इसे रिलैक्स किए बिना नहीं जा सकता था। इसकी मजीद हालत खराब हो जानी थी। कुछ ही देर में इसने मुजाहमत बंद कर दी। हाजिर ने इसके बालों में नरमी से उंगलियां चलाई। वो अब नॉर्मल हो गई थी। हाजिर ने इसे अपने सामने किया। वो अब रो रही थी। हाजिर को इसकी हालत पे दुख हुआ। आज वो इतने बड़े खतरे से निकल के आई, बजाय इसकी दिलजोई करने के मजीद इसे दुख दे गया। सख्ती से आंखें भींची, इसके चेहरे से बाल पीछे किया। अनायशा ने इसे ना देखा, गर्दन झुकाए रखी। अभी भी बहुत गुस्सा आता है तुम्हें? आवाज धीमी थी, लहजा नर्म था।
अनायशा ने शिकवा का नज़र इस पर डाली और फिर फौरन ही नजरें फेर गई। मेडिसिन ले लेना, आराम करो, इसको धीरे से कहता वो बाहर निकल गया, जबकि वो वहीं इससे पल पल बदलते शख्स को जाता देखती रह गई, जो ना तो मोहब्बत पूरी कर पा रहा था ना नफरत। अनायशा के रूम से इसका निकलना जमीला बेगम की नजरों से मख्फी ना रह सका। क्या हुआ पुत्र, क्यों परेशान हो? दादाजी ने हयात साहब से पूछा, जो सबके जाने के बाद अभी भी वहीं थे। बाबा, क्या मैं इतना बुरा हो गया हूँ कि बेटे और बाप दोनों ही छोड़ दिया? धीमे लहजे में शिकवा किया। छोड़ तो आपने दिया बहुत पहले, भूल ही गए थे कि कोई आपका बेटा भी है। यमीन ना चाहते भी गिला कर गया। दादाजी ने आंखों के इशारे से चुप रहने को कहा। शायद सही ही कह रहे हो, वो अफसरदा होकर जाने लगे। ठहरो हयात पुत्र, दादाजी ने इन्हें अपने पास बुलाया। उस वक्त हुआ जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे लगा मैं शायद बच ना सकूं। मुझे बस कशिश की फिक्र थी, इसलिए ये निकाह इस वक्त हुआ जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे लगा मैं शायद बच ना सकूं। मुझे बस कशिश की फिक्र थी, इसलिए मेरे दोनों बच्चों ने मेरी ख्वाहिश पे ये निकाह किया। इन्हें इल्ज़ाम ना दो बेटा। दादाजी बेटे को अफसरदा ना देख सके। हया साहब ने एक नज़र दूर खड़ी जमीन पर डाली। ये आपका बेटा है बाबा, मुझसे ज़्यादा इस पे आपका हक है। अब की बार लहजा नमी लिए हुआ था, लेकिन वो नाराज़ ना लगे। लेकिन मैंने हमेशा आपकी इज्जत की और आपसे प्यार किया, यामीन फौरन से बोला। तभी बाप कहना छोड़ दिया। वो उठ के इसके करीब आए। यामीन को वो आज बहुत बूढ़े से लगे, हारे से, और यामीन से ये कहाँ बर्दाश्त होता था। आगे बढ़ के बाप को जोर से भींच के गले से लगाया। इमोशनल सीन है। इसकी अपनी आंखें भी नम हो गई। बाबा, धीरे से कहता वो हया साहब को भी रुला गया। दादाजी बाप बेटे के इस मिलन पे बहुत खुश हुए, जबकि दरवाजे में खड़ी सवेरा बेगम इन बाप बेटे के गले लगने से आग लग गई और पाँव पटकती वो वहां से अपने रूम में आ गई। हाय जालिम, आराम से मोए, किडनैपर, अल्लाह पूछे इन्हें भगा भगा के मेरी टांगों का कचूमर निकाल दिया। किरण कशिश की टांगों पे मालिश कर रही थी। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। किरण ने धीमे धीमे मालिश की। नहीं, मजा आ रहा है, मुंह बनाते कहा। ये बर्थडे मुझे सारी जिंदगी याद रहेगा। आंखें मूंदते वो अपनी राय का इजहार भी वक्तन फवक्तन कर रही थी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, यू आर अ ब्रेव गर्ल। मतलब कैसे चकमा दिया इन किडनैपर्स को, ये तो हमारी कशिश ही कर सकती हैं। किरण ने इसकी तारीफ की। फखर से कशिश ने एक आंख खोल के देखा, फिर बंद कर ली। बद्दुआ मिली है, भागते रहो, भगाते रहो। हाय री मेरी टांगे, कशिश ने फिर दहाई दी। वैसे तुम बड़ी छुपी रिस्तम निकली। यामीन भाई से निकाह भी कर लिया और भनक भी ना पड़ने दी। पेन किलर इसे थमाते किरण ने इसकी क्लास ली। ना पूछ, वो भी एक अलग ही कहानी है। दर्द से दोहराती होती वो बस इतने ही बोल पाई। कुछ खाओगी? ले आऊं? खा पी के आई हूँ, बस सोना है, कशी ने मुंह बनाते कहा। किरण दूध का गिलास लेके आओ। आलिया बेगम ने अंदर आते इनकी बात सुनते फौरन कहा। नो नो, दूध नहीं। कशिश मुंह बनाते मिन्नत की। तुम लेके आओ, मैं खुद पिलाती हूँ। आलिया बेगम ने किरण को भेजा और वो खुद कशिश के पास बैठी। यमीन से निकाह कब हुआ? इनके लहजे में थोड़ा गुस्सा था। कशिश हैरत से इनके अंदाज को देख गई, लेकिन कुछ बोल ना पाई। जी वो, कशिश बहुत ज्यादा नर्वस हुई। मामा, आपको बाबा बुला रहे हैं, किरण ने आते ही कहा। और आलिया बेगम गहरी सोच के साथ कशिश के पास से उठ गई। मैंने दूध का कहा है, सलमा को वो लाती हैं तो पी के सोना। और हाँ, मामा की बातों पे ध्यान मत दो, समझी? किरण ने इसे प्यार से कहा और वो मुस्कुराती इस बात में सर हिलाती बेड क्राउन के साथ टेक लगा के आंखें मूंद गई। किरण के जाने के बाद दरवाजा धीरे से खुला। कशिश कच्ची नींद की वादियों में खो रही थी। कोई धीमे कदमों से अंदर आया था। वो मखसूस परफ्यूम की खुशबू, जिसे कशिश को इश्क था। इस ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई इसके बालों में उंगलियां चला रहा है, बहुत धीरे धीरे। इसे सुकून सा महसूस हुआ। वो आंखें खोल के देखना चाहती थी, लेकिन आंखें खोल नहीं पा रही थी। इसी लम्हे इसे माथों पे होंठों का लम्स, नरम लम्स महसूस हुआ।